Hello, everyone, and welcome to today's daily quiz. And the topic is economy for today. First question. Consider the following statements about consumer price indices. First option, it measures changes over time in the general level of prices of goods and services that households acquire for consumption. It excludes food and fuel components to avoid price volatility. It is released quarterly by the Reserve Bank of India. So, guys, please take 20, 30 seconds and try to answer it. So, let us just go option by option. The first one is it measures changes over time in the general level of prices of goods. बिल्कुल ठीक सही बात है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कंज्यूमर्स के लिए होता है और काफी सारी चीजें जो कि कंज्यूमर्स खरीदते हैं उनके प्राइजेस का जो चेंज होता है that is kind of measured to measure the inflation. So the first statement is absolutely correct. Second one is it excludes food and fuel. No, it does not. It in fact includes that. क्योंकि वॉलेटिलिटी देखनी है ना. फूड और फ्यूल यही तो कंज्यूमर्स यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं. सो इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, अगर हमें वो पता चलेगा तभी हमें ये पता चलेगा कि महंगाई कितनी बड़ी है, इन्फ्लेशन कितनी बड़ी है. एंड द थर्ड वन, इट इज रिलीज क्वार्टरली बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट इज अगेन इनकरेक्ट. पहली बात तो ये मंथली रिलीज होता है और उसके बाद इट इज नॉट डन बाय आरबीआई and it is done by MOSPI, which is Ministry of Statistics. So let's have a look at this. Consumer price indices track changes in the overall level of prices of for goods and services purchased by households for consumption. And about the second option, food and fuel are major components of the CPI, and statement two is not correct. And the third one, हमने देख ही लिया कि it is done by MOSPI. Okay. यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स डाली हैं. इनफैक्ट आई एडेड अ टेबल दैट इज टू गिव यू अ क्विक डिस्टिंग्विश और rather differentiation between what CPI is and in fact CPI के अलावा इंडस्ट्रियल वर्कर की जो CPI होती है एंड एग्रीकल्चरल लेबर, IIP, होलसेल प्राइस इंडेक्स. तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक कौन कौन उनको रिलीज करता है. सो जो मेन है वो है IIP, WPI, CPI. तो हमेशा याद रखना कि जो WPI है दैट इज डन बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, DPIIT. ठीक है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिस वन. और मंथली रिलीज होता है. CPI भी मंथली रिलीज होता है, IIP भी मंथली रिलीज होता है. इनके जो बेस ईयर है, CPI का है 2012, WPI का है 2011-12 और IIP का भी है 2011 एंड 12. ठीक है. So yeah, that's about it. What we had to learn majorly. Let's move on to the next question. In fact, मैंने एक यहाँ पे question रखा है. Let's see if you can answer it. Regarding frequency and publisher, which pair is correct? Is WPI released by the RBI and is it done quarterly? Is CPI combined released by the NSO, MOSPI, and is it released monthly? And then CPI industrial worker and index of industrial production. सो पहली बात है वीकली बेसिस पे सच नहीं होता है. सो CPI कंबाइंड, मॉस्पी मंथली, बी इज द राइट आंसर. ठीक है. एंड WPI इज मंथली डन बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर. IIP इज अगेन मंथली डन बाय NSO. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग. IIP मंथली बाय NSO. कूल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to the central bank digital currency, consider the following statements. Now, guys, this is a little important, so pay attention. सबसे पहले तो CBDC के बारे में पूछा गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. दैट इट इज द डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियाज फिजिकल करेंसी. जो इंडिया की फिजिकल करेंसी है विच इज रुपी, ये उसी का एक डिजिटल फॉर्म है. एंड इट कैन बी यूज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल पेमेंट्स. So pause the video for 20 to 30 seconds and try to answer the question. Guys, the correct answer is C, which is both of them are correct. So I'll tell you what is this news actually about. जो हमारे RBI के गवर्नर है मिस्टर संजय मल्होत्रा, उन्होंने अर्ज किया है कि देयर शुड बी मैक्सिमम यूसेज ऑफ और अडॉप्शन ऑफ दिस CBDC. कहने का मतलब ये कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं
और उनके जो अलग अलग सेंट्रल बैंक्स हैं, दे शुड एक्चुअली बी लॉन्चिंग देयर ओन सीबीडीसी। पहले होता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ सीबीडीसी व्हाट एग्जैक्टली इज इट। कि जो हमारा इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी को 1 रुपए को बनाने के लिए, या फिर लेट्स से 100 रुपीज को बनाने के लिए क्या करते हैं हम? कॉइन मिंट करते हैं या फिर नोट प्रिंट करते हैं, राइट? इट्स अ फिजिकल करेंसी। वहीं 1 रुपए को अगर मैं एक डिजिटल सिक्योर्ड गवर्नमेंट लेजर में स्टोर कर दूं, और उसको मैं डिनोशन दे दूं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपी, एंड आई एम नॉट एक्चुअली प्रिंटिंग एनीथिंग, it is just stored in a very secured government ledger in the form of a digital currency, that is called CBDC. So this CBDC has already been launched by the Reserve Bank of India. It is also a legal tender right now. और इसको लॉन्च करने का जो मेन रीजन या फिर जो मेन मोटिव कह सकते हैं, दैट इज क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। देखो, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को अगर कोई पेमेंट्स करनी है, तो रादर देन सेंडिंग द फिजिकल मनी, इट विल बी बेटर दैट इफ वी आर exchanging the currencies which are digital currencies, right? तो इंडिया की जो अपनी बैक रुपी डिजिटल करेंसी जो है, which is the CBDC, which is denoted by this sign digital rupee, इससे हम किसी और कंट्री से, फॉर एग्जांपल लेट्स से जापान है, जापान की अपनी डिजिटल करेंसी है, सो वी विल इजीली बी एबल टू ट्रांजैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली। देयर डज नॉट हैव टू बी, और किसी भी फिजिकल करेंसी के ट्रांसफर की, आदान प्रदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट इट डज। अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है विच इज अबाउट द स्टेबल कॉइन्स। नाउ व्हाट आर स्टेबल कॉइन? स्टेबल कॉइन है कि जैसे एक कंपनी है, लेट्स से कि उस कंपनी का नाम है कोई भी XYZ कंपनी, राइट? सो इस XYZ कंपनी ने अपना जो भी इनके पास रिसोर्स है, यहाँ पे जो भी इनका रेवेन्यू है, उसको डिवाइड करके कुछ डिजिटल कॉइन्स में, फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 1 स्टेबल कॉइन और दिस कंपनी, ठीक है? इन्होंने अपने स्टेबल कॉइन बना लिए, एंड दैट इज अगेन बैक्ड बाय any asset, which could be their own asset, their own money, or it could also be gold, or it could also be US dollars, which is a global currency. So that is called stable coin. अब इसमें होता क्या है, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे, it is not that secure, or rather not as much secure as a digital currency by a central bank will be. And it again is not all the time considered as a legal tender. It's not a legal tender either. So rather than using stable coins, it's better that we switch over to the CBDCs, which are the central currencies. तो वो हर एक country को बनानी पड़ेंगी पहले, and that is when it will give us the best benefit and the best use case. So that is what our Governor, Mr. Sanjay Malhotra, has proposed, and rather has been able to convey to the digital members who were present in that conference. So that is this. What this news article is about? Okay. So correct answer is C, which is it is definitely a digital form of India's physical currency, and it can also be used to facilitate international payments. Let's move on to the next question. What is the outturn ratio? So outturn ratio is defined as, and these are the 4 options. Let me read out the options for you. Yield of usable product from raw material after processing, ratio of input cost to output cost, amount of raw material required to produce 1 unit of product, and proportion of energy consumed during the manufacturing process. Now, I'll give you the entire background about this, that what exactly has happened. Uh, there is a paddy field. राइस की जो फील्ड होती है ना, सो दिस न्यूज इज बेसिकली रिलेटेड टू पंजाब। अब होता क्या है कि जब ये पूरी की पूरी राइस फील्ड है, राइट, हो सकता है कि अज्यूम करते हैं इसमें से 100 kg ऑफ पैडी इज बिंग हार्वेस्टेड। मतलब पैडी का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये पूरा चावल का ऐसे पूरा, यू कैन से फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप, और यहाँ पे राइस के मतलब इट्स इन द हस्क। सो दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड पैडी। और जब इसमें से हम चावल सेपरेट कर लेंगे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज राइस।
ठीक है। अब होता ये है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेराइटीज विच आर द सीड्स बेसिकली। वन आर द ट्रेडिशनल वन, जो कि रोजमर्रा की फार्मिंग के अंदर यूज होता है या फिर होता आ रहा है। एंड द अदर वन इज HYV। HYV स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है। अब ये जो ट्रेडिशनल वाले होते हैं, ट्रेडिशनल में 100 किलोग्राम अगर इसमें से निकला, तो इसमें से तकरीबन 70 किलोग्राम पैडी में से 70 किलोग्राम जो है वो राइस निकलेगी, मतलब बाकी का 30 किलोग्राम जो है वो सिर्फ हस्क होगा। ठीक है। ओके। और जो HYV है उसमें से तकरीबन 60 kg निकलेगी। तो ये जो 100 से 60 निकल रही है और ये जो 100 से 70 निकल रही है ना, दिस इज कॉल्ड द आउट टर्न रेशियो। Hence, the first statement is the right one, which is it is a yield of usable product from the raw material after processing. अब न्यूज ये है कि पंजाब के अंदर लास्ट ईयर तक, और इनफैक्ट जो लास्ट सीजन था उसमें होता क्या था कि जो फार्मर है, फार्मर क्या करेगा, फार्मर अपनी पैडी जो फसल है उसको काटेगा, और काटने के बाद ये किसको देगा, राइस मिल ओनर्स को, ताकि वो अपनी मशीन यूज करके या मिल यूज करके इन पैडी में से राइस बनाएंगे। ठीक है। अब होता ही आ रहा था कि ये जो फार्मर है ना, ये लोग यूज करते थे HYV। अब HYV में क्या होता है कि 100 में से मतलब बेसिकली ये फार्म है, फार्म में से जो ट्रेडिशनल वाली होगी, ये ट्रेडिशनल वाली यहाँ पे है, ये 1 एकड़ में से आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट इट इज यील्डिंग 120 किलोग्राम। ठीक है, सॉरी इट्स यील्डिंग 100 किलोग्राम, जो ट्रेडिशनल वाली है, नॉर्मल वाली है। लेकिन जो HYV है, इट इज एक्चुअली यील्डिंग मोर देन दैट, इट इज यील्डिंग 120 किलोग्राम। अभी जो राइस मिल ओनर है, अगर आप ध्यान से सोचो तो इनको जो पैसे देने पड़ेंगे फार्मर को वो 120 के हिसाब से देने पड़ेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वाली अगर जो सीड होगा वो ट्रेडिशनल होगा, तो उनको 100 किलोग्राम के पैसे देने पड़ेंगे, राइट। अब हो क्या रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे राइस मिल ये बोल रहे हैं कि जब मैं 100 किलोग्राम के पैसे यहाँ पे भी दे रहा हूँ और यहाँ पे भी दे रहा हूँ, यहाँ पे जो HYV है उसमें से जो मेरा यील्ड आ रहा है वो सिर्फ 60 आ रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल है उसमें से मेरा यील्ड जो है 70 आता है। तो राइस मिल ओनर्स को एक्चुअली में इससे फायदा हो रहा है, जो कि ट्रेडिशनल वाले हैं। HYV से फायदा नहीं होता है। लेकिन अभी हुआ क्या है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, सो मेकिंग अ सरप्राइज शिफ्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन लास्ट ईयर, राइस शेलर्स इन पंजाब आर नाउ स्टोरिंग गवर्नमेंट procured hybrid paddy varieties for the ongoing kharif market season. These are the same varieties they had refused to accept the previous year. तो मतलब ये जो HYV है, इनको लास्ट ईयर तक जो राइस मिल ओनर्स थे वो नहीं लेते थे, मना कर देते थे। क्यों? क्योंकि इनका आउट टर्न रेशियो जो है वो लो है। ठीक है। 100 के लिए पे करेंगे मिलेगा 60, और ट्रेडिशनल वाले में 100 के लिए पे करेंगे मिलेगा 70। ठीक है, जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल नंबर। सो लास्ट ईयर राइस मिलर्स हैड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हाइब्रिड पैडी, क्लेमिंग इट रिजल्टेड इन अ लोअर आउट टर्न रेशियो। ठीक है। तो ये जो टर्म है आउट टर्न रेशियो, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। सो द प्रोपोर्शन ऑफ राइस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैडी आफ्टर मिलिंग देन व्हाट इज मैंडेटेड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के हिसाब से जो आउट टर्न रेशियो होना चाहिए दैट इज 67%। ठीक है। While millers claim that only 60 to 63% yield, causing a significant loss in the procurement. ठीक है। In response, the Punjab government banned the sale of the hybrid paddy seeds in the state ahead of the 2025 Kharif season, citing low OTR and high cost of seeds. इसीलिए जो सरकार थी, पंजाब सरकार थी, उन्होंने 2025 खरीफ सीजन के अ, अंदर हाइब्रिड सीड्स को बीजना जो था वो मना कर दिया था, बैन लगा दिया था। लेकिन अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे बैन लगाया था तो फिर अभी कैसे खरीद पा रहे हैं, अभी ये मतलब फसल हुई क्यों? क्योंकि बैन लगाने तक कई जो ऐसे फार्मर्स है उन्होंने ऑलरेडी वो सोइंग कर दी थी हाइब्रिड वैरायटी की। ठीक है। और अब इनको खरीदना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द recent floods in Punjab, which was like a very devastating experience altogether for the farming tabka, there has been very less production in terms of rice. तो अभी फार्मर्स के पास, इनफैक्ट मिलर्स के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। उनको ये लग रहा है कि रादन कुछ ना मिले, इससे अच्छा है कि कुछ तो मिल जाए। इसीलिए दे आर गोइंग फॉर, और अदर दे आर ओके फॉर द HYV वेराइटीज एज वेल।
तो वही फार्मर्स का अलग प्रोटेस्ट चल रहा है कि देयर शुड बी जस्ट वन पॉलिसी, कि अगर वो HIV अब ले रहे हैं तो फिर उनको हमेशा लेने में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि फार्मर्स का क्या है, फार्मर्स को यील्ड ज्यादा मिलता है। फार्मर्स को 1 एकड़ के अंदर जितनी फसल मिलनी चाहिए वो ट्रेडिशनल से ज्यादा HIV में मिलती है। ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस न्यूज इज ऑल अबाउट। सो हमेशा याद रखना व्हाट इज द आउटर्न रेशियो दैट वी हैव बीन एबल टू लर्न एज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस न्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. Chile is India's second largest trading partner in South America, and India majorly imports lithium from Chile. Which of these statements given above are correct? So take some time and try to answer the question. Take 20 to 30 seconds. Now, let's just try to think it very logically, guys. That does India even require imports for lithium? आई मीन लिथियम का अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की कर रहे हैं? लिथियम आयन बैटरीज की। बट इज इट ट्रू? डज इंडिया एक्चुअली मैन्युफैक्चर लॉट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज? आंसर इज नो। सो हेंस second option is definitely incorrect. Or Chile is also not the second largest partner, by the way, it's the fifth largest. So both the statements are incorrect. So let's have a look at the answer. Chile is in fact India's fifth largest commercial partner in South America. ठीक है। मेजर प्रोडक्ट्स जो चिली से इंपोर्ट करता है इंडिया, दैट इज अराउंड कॉपर। सो दो चीजें चिली के अंदर ज्यादा पाई जाती हैं, एक तो है कॉपर, दूसरी है लिथियम। ठीक है। इंडिया जो ज्यादा इंपोर्ट करता है दैट इज कॉपर। सो कॉपर ओर्स, कॉन्सेंट्रेट्स, अनप्रोसेस्ड कॉपर एंड कॉपर स्क्रैप, दिस अकाउंट्स फॉर द मैक्सिमम। ठीक है। नाउ यहाँ पे मैंने टॉप 10 जो कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया का एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट होता है, जो ओवरऑल ट्रेड है, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे अगर आप 5वें नंबर पे चिली को नहीं देख रहे हो तो हैरान मत होना, बिकॉज इट्स फॉर द ग्लोबल ट्रेड। तो टॉप में जो कंट्री इस टाइम पे है, चाइना और US, इनके बीच में एक टसल चलता रहता है, मतलब नॉट इनके बीच में बट इंडिया का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है दैट इज इधर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। बट हाँ, जो मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं वो हम चाइना से ही करते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 101.7। ठीक है। सो चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव दुबई, सॉरी नॉट दुबई बट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड वी हैव रशिया, Saudi Arabia, Singapore, Netherlands, Iraq, Indonesia, and Hong Kong, and also UK. Now let's move on to the last question of the day. Which of the following components are or is part of the outward foreign direct investment? But आप लोगों ने अब काफी सुना होगा foreign direct investment, foreign institutional investors, so foreign portfolio investors, FPI, FII, FDI. But now let's think about this OFDI. तो जैसे आप FDI के बारे में सोचते हो, बट उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आप OFDI के बारे में सोचो and try to answer this question. So which of the following are the components? First is equity, loans, guarantee issued, portfolio investment in foreign securities, import of machinery from foreign countries. Options are 1, 2, and 3, 1 and 2, 2, 3, and 4, 1, 2, 3, 4, and 5. So always remember guys, for OFDI, it's basically कि कोई बंदा इंडिया के अंदर है and this business or this person is actually investing in an organization or a company outside of India, and when this person does it for more than 10%, it will be considered as FDI with an O, which is outward foreign direct investment. अगर इंडिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रही है and that is more than 10%, it will be called as FDI. Simple. अब ये जो OFDI होते हैं इसके कुछ 3 कंपोनेंट्स होते हैं. So the first component is equity, second one is loans, and the third one is guarantee. So the correct answer is A, 1, 2, and 3. Outward foreign direct investment by local firms has actually increased by about 17% to 37 billion in 2024. OFDI consists of 3 components, which is equity, loans, and guarantees issued. अब यहाँ पे मैंने नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं फॉर FDI.
FDI is inbound to India. A global auto firm acquires 51% of an Indian EV startup. It's FDI. OFDI क्या होगा? An Indian pharma company sets up a 100% subsidiary in Brazil. इंडिया के बाहर चला गया, तो दैट इज OFDI. और FPI FII क्या होते हैं? जिसके अंदर 10% से कम हम कंपनी के स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर हम मैनेजमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड FPI और FII. इनको याद करने की ट्रिक: 10% एंड से इन द वे, FDI नीड्स सिग्निफिकेंसी, ठीक है? ELG for OFDI and paper not power for portfolio, which is FPI. So guys, that was it for today's MCQs on economy. Thank you.